ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15th ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 146th ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IMD ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ SP ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 16th ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ 18th ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧੂ ਵਿਨੋਦ ਚੋਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਨਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਸਿਨੇਮਾ। ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਵਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ 2040 ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਟਰ ਐਲੈਕਸਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਆਫ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੂਮੈਨਸ ਔਰ ਮੈਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਓ ਭਾਰਤ ਪੇਰੋਲ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MSME ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਧੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਥ ਪੋਲਿਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਧੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਹੈਲਥ ਪੋਲਿਸੀ ਐਕਸਪਰਟ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਸਵਾਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਸਵਾਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟੋਰੀਓ ਸਟੈਰਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਆਨਰਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 4th ਹਾਈਐਸਟ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3rd ਹਾਈਐਸਟ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2nd ਹਾਈਐਸਟ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। UK has invited Prime Minister Narendra Modi to attend 47th G7 summit। 47th G7 summit ਹੈ ਜੋ ਉਹ UK ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼
G7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ G7 ਗਰੁੱਪ G9 ਜਾਂ G10 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 46th ਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। बेसिकली कंपनीज़ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਭੱਟ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उमेश सिन्हा ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਫੋਰਮਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ KS ਥਿਮਾਇਆ ਫੋਰਮਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਐਟ ਮਾਦੀਕੇਰੀ ਕੋਦਾਗੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮਾਦੀਕੇਰੀ ਕੋਦਾਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ KS ਥਿਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸੀਡ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਸ਼ਮ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕਸ਼ਮ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਥੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ UN ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ USA ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਪੇਨ ਹਿੱਟ ਬਾਈ ਅ ਸਟਰੋਮ ਫਿਲੋਮੀਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟਰੋਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲੋਮੀਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ? ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ 10ਵੀਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਸ ਔਨਗੋਇੰਗ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਹੈ ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਟੋਟਲ 42 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। जो चिल्का लेक है इस डॉल्फिन्स की गिनती 156 हो गई है 150 तो। ठीक है, इस तो इलावा डॉल्फिन्स की टाइप पूछी जा सकती है, तो ईरोवेडी डॉल्फिन्स पाई जाती ने। ईरोवेडी डॉल्फिन्स चिल्का लेक के पाई जाती ने, आप कल भी डिस्कस किया। इस तो इलावा फिशिंग कैट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। इसका एंबेसडर अपॉइंट किया गया है, चिल्का लेक के एंबेसडर फिशिंग कैट। वैसे फिशिंग कैट वेस्ट बंगाल का स्टेट बर्ड है, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा।
ठीक है, आप स्टैटिक डिस्कस करते जा रहे हैं। स्टैटिक दे विच भी इंपोर्टेंट बनेगा कि वैस्ट बंगाल का स्टेट एनीमल, ठीक है, स्टेट एनीमल कौन है? तो फिशिंग कैट है। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, इंडिया की फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम है जी, ये कित्थे लगाया जा रहा है? आलापुझा केरला दे विच। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रूट फ्लाई की एक नवी स्पीसीज कोयंबतूर तमिलनाडु दे विच पाई गई है, जिसका नाम सिरुवानी रखा गया, जो कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वैसटर्न घाट्स का। ठीक है जी, तो यह हो गया अपनी न्यूज़। ठीक है, पंजाबी दे विच भी तुहानूं लिखिया हुई ने, चाहो स्टडी कर सकते हो पूरी डिटेल दे विच। इस तो इलावा चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे विच एक्सरसाइजिज डिस्कस कर रहे हैं। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया चाइना दी। इक्विवरीन एक्सरसाइज इंडिया मालदीव्स इक्विवरीन एक्सरसाइज है। अल नागा एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और ओमान, इंडिया और ओमान दी एक्सरसाइज है अल नागा। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश दी, इंडिया बांग्लादेश की एक्सरसाइज संप्रीति। इस तो इलावा बोंगो सागर एक्सरसाइज भी इंडिया और बांग्लादेश की है। ठीक है जी, याद रखांगे हैंड इन हैंड चाइना के नाल, इक्विवरीन मालदीव्स के नाल, अल नागा ओमान के नाल, संप्रीति और बोंगो सागर बांग्लादेश के नाल। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा मोटर बाइक एंबूलेंस रक्षिता नाम की, सब तो पहले यह कीवर्ड इंपोर्टेंट बनेगा रक्षिता एक मोटर बाइक एंबूलेंस है। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रक्षिता की है। रक्षिता एक रॉकेट है, रक्षिता एक मिसाइल है, एक हैलीकॉप्टर है, एक शिप है। तो यह की है? एक मोटर बाइक एंबूलेंस है जो कि डीआरडीओ ने बनाई है। डीआरडीओ दे विच भी डीआरडीओ एक लैबोरेटरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसिस, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसिस। इस द्वारा इसनू बनाया गया किस दे लई? ये बनाया गया सीआरपीएफ के लिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए। किस दे लई बनाया गया इसनू सीआरपीएफ के लिए बनाया गया। ठीक है जी। अच्छा, सीआरपीएफ की अगर आप गल करिए तो सीआरपीएफ कदों बनाई गई सी? 27 जुलाई को बनाई गई सी। 27 जुलाई 1939 आप डिस्कस भी किया कुछ दिन पहले कि सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे 27 जुलाई को ऑबजर्व किया जाता है। न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है और AP माहेश्वरी इस दे हैड ने, AP माहेश्वरी सीआरपीएफ के हैड ने। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं CISF की गल करते हैं 10 मार्च आप डिस्कस किया 10 मार्च। CISF BSF के बारे आप डिस्कस किया 1 दिसंबर। DRDO की गल करते हैं 1 जनवरी आप डिस्कस किया 1 जनवरी 1958 न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। और जी सतीश रेड्डी DRDO के हैड ने। NSG नैशनल सिक्योरिटी गार्ड 16 अक्तूबर NSG का फाउंडेशन डे है। ITBP की गल करते हैं तो ITBP का फाउंडेशन डे भी अक्तूबर के होंगे है। ITBP 24 अक्तूबर को ITBP का फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए, कितने ना कितने एग्जाम के स्टैटिक के भी पूछ ले जाते हैं, तो याद रखेंगे। नैक्सट चलते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च ऋण समाधान योजना नूं किहड़े बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऋण समाधान योजना नूं SBI द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। SBI की गल करते हैं, दिनेश कुमार खारा इंपोर्टेंट रहेगा नाम। इस तो इलावा अश्वनी भाटिया का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, अश्वनी भाटिया MD CEO अपॉइंट किए गए SBI के। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए PNB पंजाब नैशनल बैंक SS मलिका अर्जुन राव हैड ने PNB दे, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है PNB का। HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक तीनों का हैडकुआटर अलॉन्ग विद SBI मुंबई के है। HDFC बैंक के CEO का नाम याद रखेंगे, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं
एक्सिस बैंक द्वारा लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी, कई बार पूछी जाएगी एग्जाम दे विच, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गल करांगे इस दे उत्ते। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं तो डिफेंड एक्सा डिजिटल बोट असिस्टेंट भी एक्सिस बैंक द्वारा ही लॉन्च किया गया। और भी चाहिए तो इनिशिएटिव डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC हम हार नहीं मानेंगे इनिशिएटिव है, सॉन्ग है, रिलीज़ किया गया सी, प्रसून जोशी द्वारा लिरिक्स दिते गए सी, AR रहमान द्वारा म्यूजिक दिता गया सी। HDFC बैंक का समर ट्रीट्स इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा HDFC बैंक के बारे अगर आप होर डिस्कस करते हैं तो शौर्य क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी लॉन्च किया गया सी। ICICI बैंक की अगर आप गल करते हैं तो होम उत्सव इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा आई डिजिटल पे एप्लीकेशन आप डिस्कस की कुछ दिन पहले। इस तो इलावा और भी काफ़ी इनिशिएटिव्स ने, सैटेलाइट डाटा हो गया फॉर एग्जांपल यूज़ करने वाला फर्स्ट बैंक, व्हाट्सएप देते सर्विसेज लॉन्च करने वाला फर्स्ट बैंक ICICI बैंक है। ठीक है, ये चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं और हर एक चीज़, ये हर एक न्यूज़ होंगी है जी ये इंपॉर्टेंट रहती है, रिकॉल करते चलिया करो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के वैल। तो हु इज़ ऑनर्ड विद कैनेडाज हिंदी राइटर गिल्ड अवार्ड। कैनेडा द्वारा हिंदी राइटर गिल्ड अवार्ड दिता गया, तो किहड़े परसन नूं दिता गया है? तो एक मिनिस्टर, तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने इन्हां नूं हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड दिता गया। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक नूं ही वैत्यन अवार्ड आप डिस्कस कर चुके हैं, वैत्यन अवार्ड दिता गया सी UK द्वारा। इस तो इलावा नेपाल द्वारा भी एक अवार्ड इन्होंने दिता जा चुका है। नेपाल द्वारा इन्होंने जो अवार्ड दिता गया सी उसका नाम सी हिमल गौरव सम्मान नेपाल द्वारा इन्होंने दिता जा चुका है। ठीक है, इन्हों द्वारा रिसेंटली बुक भी लिखी गई सी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं तो इन्हों द्वारा होर भी कई बुक्स ने, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ डिज़ायर बुक भी इन्हों द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर भी ने, रमेश पोखरियाल निशंक की अगर आप गल करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स ने और इन्हों की बुक्स भी इंपॉर्टेंट बननी है, कितने ना कितने एग्जाम पूछिया जा सकती हैं। ठीक है, रीसेंट जी बुक इन्हों द्वारा लिखी गई सी, ठीक है, महर्षि अरविंद के उत्ते कुछ दिन पहले भी आप डिस्कस की थी दोबारा, तो कमेंट बॉक्स में तुम दसनी उसका नाम। ठीक है, हिंट दे दिता मैंने कि महर्षि अरविंद के उत्ते वो किताब लिखी गई सी। चलो मैं दस देना, पायनीर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, रोज़ इन्हों का नाम आप डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने लवे दो होर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियां आप डिस्कस की हुई ने, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र। रविशंकर प्रसाद, काफ़ी दिन तो इन्हों का नाम नहीं डिस्कस किया आपने, तो रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। इस तो इलावा रविशंकर प्रसाद लवे IT मिनिस्ट्री भी है। और पटना बिहार तो लोकसभा MP ने, नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ने, रामनाथ कोविंद वाइस प्रेसिडेंट ने, इन्होंने बारे आप हुणे प्रेसिडेंट ने रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो रामनाथ कोविंद ने जिहड़े इन्हां रिलेटेड आप हुणे एक न्यूज़ डिस्कस की सी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप पहले भी कहा है कि वह न्यूज़ है जिहड़ा कि म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है, वह म्यूजियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ के नाम दिते उसनूं इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ चेयर्ड द 148th सैशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। WHO की मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो किन्ना ने हैड की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तुहानूं याद होएगा आप पहले डिस्कस भी किया होया कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हैड अपॉइंट किए गए सी डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है जी, इसी दे नाल WHO के फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले WHO डिस्कस कर लेने। तो 7 अप्रैल 1948 के WHO बनाया गया सी, जेनेवा के हैडक्वार्टर है और टेड्रोस एडानोम ने जो WHO के हैड ने। ठीक है जी, इसी दे नाल WHO ने रिसेंटली WHO फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन जिसके हैड इंडियन अपॉइंट किए गए हैं अनिल सोनी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा डॉक्टर हर्षवर्धन की गल करते तो हैल्थ मिनिस्टर ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। इस तो इलावा अर्थ साइंस मिनिस्ट्री और साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देख रहे हैं और चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी,
इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश, डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश। निर्मला सीतारमन फाइनेंस प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है और राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। ओम बिरला स्पीकर ने, स्पीकर लोक सभा के स्पीकर ने कोटा राजस्थान तो लोक सभा MP ने। हर्षवर्धन श्रिंगला तो फॉरन सैक्रटरी ने, इंडिया के फॉरन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है। तो हैल्थ सैक्रटरी कौन ने? बिल्कुल रीसेंटली अपॉइंटमेंट है हैल्थ सैक्रटरी की। अगर आप गल करते हैं लास्ट 2-3 आई थिंक 3 या 4 महीने पहले इन्हों की अपॉइंटमेंट की गई सी। हैल्थ सैक्रटरी कौन ने? कमेंट बॉक्स के दसना। नेक्स्ट है द टास्क फोर्स सेटअप टू टेक अ री लुक एट द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन हैज़ submitted its report to the Prime Minister Office and Ministry of Women and Child Development. Who is the chairman of this committee? Basically चाइल्ड अगर आप गल करते हैं कि गर्ल चाइल्ड की जी मैरिज है, ठीक है, उसके लिए जी एक एज बेसिकली मैरिज के लिए एक एज पर्टिकुलरली सरकार द्वारा अनाउंस की गई है कि 18 साल तो पहले मैरिज नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस दे अंडर इसनू दोबारा रीलुक करने के लिए रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, न्यूज़ के रही है कमेटी। तो कमेटी के चेयरमैन कौन सी? तो कमेटी के चेयरमैन से जया जेटली इस कमेटी के चेयरमैन से, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शंस की तो स्मृति ईरानी का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि WCD मिनिस्ट्री की गल आई है। तो WCD मिनिस्ट्री यानी कि वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी लवे है। इस तो इलावा टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है और अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। हरदीप सिंह पुरी की अगर आप गल करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। इस तो इलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर ने और राज्यसभा MP ने यूपी तो ही राज्यसभा MP हरदीप सिंह पुरी। जी कृष्णा रेड्डी वैसे तो डिफेंस नहीं होम दे डिप्टी मिनिस्टर कहांगे या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने। इस तो इलावा जी कृष्णा रेड्डी नूं रिसेंटली लद्दाख के लिए एक कमेटी बनाई गई सी, लद्दाख के कल्चर के लिए उसके हैड अपॉइंट किया गया सी कंजरवेशन के लिए जी कृष्णा रेड्डी। इस तो इलावा जी कृष्णा रेड्डी नूं ही अगर पहले की अगर आप गल करते हैं एक होर कमेटी बनाई गई सी किन्हां दे लई वैलफेयर के लिए फ्रीडम फाइटर्स के वैलफेयर के लिए जी कमेटी बनाई गई सी उसके हैड भी जी कृष्णा रेड्डी अपॉइंट किए गए। शशि शेखर वेम्पति SS वेम्पति अगर आप गल करते हैं वैसे प्रसार भारती के CEO ने शशि शेखर वेम्पति। इस तो इलावा शशि शेखर वेम्पति नूं टैलीविजन रेटिंग एजेंसी के लिए एक कमेटी बनाई गई सी उसके हैड अपॉइंट किया गया सी। टैलीविजन रेटिंग एजेंसी की गाइडलाइनस नूं रिव्यू करने के लिए जी कमेटी बनाई गई सी उसके हैड अपॉइंट किए गए सी शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है येस बैंक हैज़ रोल्ड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME सैक्टर नूं सपोर्ट करने के लिए येस बैंक की गल करते हैं मुंबई के हैडकुआटर है प्रशांत कुमार इस दे हैड ने और इन्हों द्वारा की किया गया कमेटी बनाई गई, कमेटी नहीं कहेंगे सॉरी एक स्कीम कहेंगे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया MSME सैक्टर के लिए उसका नाम इन्होंने रखा येस MSME, ठीक है येस MSME। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तो इलावा MSME की गल करते हैं तो MSME सैक्टर यह मिनिस्ट्री है जी यह नितिन गडकरी लवे है। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री नितिन गडकरी लवे है। इस तो इलावा इन्होंने लवे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है जो इंपॉर्टेंट रहेगी रोड ट्रांसपोर्ट और नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र तो लोकसभा MP ने, नागपुर महाराष्ट्र तो लोकसभा MP ने नितिन गडकरी, ठीक है जी याद रखा। नेक्स्ट है USA has designated which of the following country as its major strategic partner। बेसिकली अगर आप गल करते हैं
कि USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ UAE ਔਰ ਬਹਿਰੇਨ ਨੂੰ। ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ UAE ਔਰ ਬਹਿਰੇਨ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ USA ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, तो अपना आंसर होएगा फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2। ठीक है जी। इस तो इलावा एक होर चीज़ याद रखा कि USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ फाइनली ओथ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਬਿਡਨ ओथ ਲੈਣਗੇ। माजू वर्गीसी ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਰੀ इंपोर्टेंट रहेगा, जो कि हाईलाइटेड है क्योंकि इन्हों ओथ दिलाने के लिए अपॉइंट किया गया सी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, इस तो इलावा होर की डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, पूछा जाएगा कि किन्नवें नंबर के प्रेसिडेंट ने, तो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। इस तो इलावा अगर आप 46 नंबर के, सॉरी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं UAE और बहरेन, एक इंपोर्टेंट चीज़ यह याद रखांगे कि नोबल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है किन्ना नूं, USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नूं। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं UAE के हैड नूं भी अपॉइंट किया गया सी, और इजराइल के बेंजामिन नेतनयाहू प्राइम मिनिस्टर, और UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तिन्हां नूं नॉमिनेट किया गया सी 2021 नोबल पीस प्राइज़ के लिए। इस दे लई क्योंकि USA द्वारा जिहड़ी इजराइल कंट्री दे नाल डिफरेंट कंट्रीज़ नूं समझौता करवाने लिए, जिसनों आपां कहने आ एब्राहिम एकॉर्ड साइन करवाने लिए एग्रीमेंट साइन करवाए गए सी। ठीक है जी। हर एक फैक्ट है जिहड़ा इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक जिसका हैडकुआटर मुंबई के विच है। हैडकुआटर्स कई बार पूछे जाते हैं, डायरैक्टली याद रखांगे। 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है, तो इन्हों का नाम है विश्ववीर आहूजा नूं री इलैक्ट किया गया, रीअपॉइंट किया गया MD एंड CEO के तौर पर RBL बैंक के। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं संजय कपूर आप लास्ट वीक ही डिस्कस किया, इन्हों का नाम चैस फैडरेशन है जी, ऑल इंडिया चैस फैडरेशन, इसके हैड या प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। चैस फैडरेशन का हैडकुआटर चेन्नई के विच है। आशीष पेठे ने जिहड़े ऑल इंडिया जैम काउंसल के हैड अपॉइंट किए गए हैं। ऑल इंडिया जैम काउंसल का हैडकुआटर कित्थे है, न्यू दिल्ली के विच है। करण बाजवा गूगल क्लाउड के हैड ने, वैसे गूगल क्लाउड इंडिया के हैड सीगे, इन्हों गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक रीजन के हैड अपॉइंट किया गया। ठीक है, याद रखांगे। इन्होंने प्रमोशन दी गई है, गूगल क्लाउड इंडिया के हैड तो गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक के हैड बनाए गए हैं करण बाजवा। सुदीप जैन इलैक्शन कमिश्नर ने कहांगे डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर ने, जिन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई, 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई सी सुदीप जैन। नेक्स्ट है छाबहार पोर्ट कित्थे लोकेटेड है। ठीक है, न्यूज़ के विच रहा छाबहार पोर्ट, डायरैक्टली इंपोर्टेंट बनेगा कित्थे लोकेटेड है, तो ईरान के विच लोकेटेड है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्यों है, अगर आप गल करते हैं कि इंडिया छाबहार पोर्ट ईरान के विच है। ठीक है, अगर आप गल करते हैं कि अगर ये इंडिया है तो इत्थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, तो ईरान के विच छाबहार पोर्ट है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस करके इंडिया ने इसनूं डेवलप किया, इस पोर्ट नूं पूरी तरीके नाल डेवलप किया गया इंडिया द्वारा। ठीक है, न्यूज़ की है, तो न्यूज़ यही है कि इंडिया के वैसल्स इत्थे पहुँचने शुरू कर दिए गए। ठीक है, फर्स्ट शिपमेंट है जी इंडियन इक्विपमेंट की, यह इत्थे भेजी गई है। तकरीबन 6 वैसल्स इंडिया ने भेजे ने ईरान। ठीक है। अच्छा, इसके रिलेटेड हल्की जी डिटेल डिस्कस करते हैं कि यह इंडिया ने कदों डेवलप करने के लिए अनाउंस किया, जदों चाइना ने अनाउंस किया कि चाइना पाकिस्तान के एक पोर्ट डेवलप करेगा, गवादर पोर्ट। ठीक है, चाइना ने गवादर पोर्ट डायरैक्टली पूछा जाएगा कित्थे है, तो पाकिस्तान के विच है। चाइना ने पाकिस्तान का एक पोर्ट डेवलप किया, गवादर पोर्ट। उस तो बाद इंडिया ने ईरान का एक पोर्ट डेवलप किया, छाबहार पोर्ट, अफगानिस्तान के लिए डायरैक्ट कनैक्टिविटी बेसिकली प्रोवाइड हो सके इंडिया नूं, इसलिए इसनूं लॉन्च किया गया सी, शुरू किया गया सी। इस तो इलावा अगर ज़्यादा डिटेल अगर PCS लैवल अगर आप गल करिए, तो इसके
दो चीज़ां पूछा जा सकती हैं कि जिहड़ा छाबहार पोर्ट है इसनूं बेसिकली दो हिस्सों के डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है शाहीद बहस्ती, शाहीद बहस्ती, ठीक है, बहस्ती, और दूसरा शाहीद दंतारी, शाहीद दंतारी, ठीक है। दो हिस्सों के इसमें डिवाइड किया जा सकता है। शाहीद बहस्ती है जिहड़ा यह डेवलप पूरी तरीके नाल हो चुका है, ठीक है, इंडिया ने ही डेवलप करना सारा का सारा, तो बहस्ती नूं डेवलप किया जा चुका है, पर दंतारी जिहड़ा हिस्सा है यह हजे डेवलप करना बाकी है या इसनूं किया जा रहा है, ठीक है, इंपोर्टेंट बनेगा। न्यूज़ इत्थे पूरी तरीके लिखी हुई है कि फर्स्ट शिपमेंट ऑफ इंडियन इक्विपमेंट 6 वैसल्स इंडिया के छाबहार पोर्ट से पहुंचे ने जो कि डेवलप किया गया इंडिया द्वारा। इस अलावा पाकिस्तान रिलेटेड एक न्यूज़ सी कि पाकिस्तान ने परमिशन दी है दुबई रॉयल्स नूं टू हंट हाईली वनरेबल स्पीसीज होबारा बस्टर्ड। डायरैक्टली पूछा जा सकता है कि होबारा बस्टर्ड किस कैटेगरी के आती है, तो हाईली वनरेबल स्पीसीज है, ठीक है, बेसिकली एक बर्ड है, ठीक है। जिस तरीके आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डिस्कस किया हुआ उसी तरीके एक बर्ड है होबारा बस्टर्ड, ठीक है। दुबई रॉयल्स बेसिकली यूएई के कुछ रॉयल्स इन्हों परमिशन दी गई है अलॉन्ग विद मुहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान द्वारा इसनूं हंट करने के लिए, ठीक है। हालांकि ये कोई अच्छी गल नहीं है पर अपने लिए सिंपली न्यूज़ के बनेगा, याद रखांगे। नैक्सट है सीमेरू वोल्केनो। स्टैटिक रूप के अज की जी न्यूज़ आप डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहनगियां। डायरैक्टली पूछा जाएगा सीमेरू वोल्केनो कित्थे है, क्योंकि ये न्यूज़ के रहा इंडोनेशिया के है, ठीक है। इंडोनेशिया पिछले कुछ दिनों तो न्यूज़ के है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं सुलावेसी आइलैंड आप डिस्कस किया, सुलावेसी आइलैंड के उत्ते एक कहांगे पेंटिंग पाई गई है, ठीक है। आप डिस्कस की कि तकरीबन 45,000 साल पुरानी यानी कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नॉन पेंटिंग कित्थे पाई गई, सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया के विच, ठीक है जी। इसी तरीके सुमेरू वोल्केनो है एक इंडोनेशिया का, ये एरप्टेड होया इस करके ये इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है जी, याद रखांगे। इंडोनेशिया सुमेरू वोल्केनो। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है। अच्छा, जकार्ता की अगर आप गल करते हैं एशियन का हैडकुआटर कित्थे है, तो जकार्ता दे विच है। एशियन जिहड़ा ग्रुप है इसका हैडकुआटर जकार्ता दे विच है। एशियन दे विच 10 मैंबर कंट्रीज़ ने और इंडिया इसका मैंबर नहीं है। एशियान ग्रुप का इंडिया मैंबर नहीं है, याद रखांगे, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे एशियन समिट है जिहड़ा एशियन समिट कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, या फिर नैक्सट एडिशन होएगा एशियन समिट का यह कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी तुसीं दसना। इस तो अलावा नेपाल रिलेटेड एक न्यूज़ है डिस्कस कर लेने। एक रिकॉर्ड कहांगे कि रिकॉर्ड बनाया नेपाल ने, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो अलावा फिलीपींस और फिजी की गल करते हैं, फिजी के बारे में याद होगा आप कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है नज़हत शामीन खान का नाम, नज़हत शामीन खान जो कि फिजी के एंबेसडर ने जेनेवा के लिए। इन्हों यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसल के हैड अपॉइंट किया गया, ठीक है जी। फिलीपींस के बारे याद रखांगे एडीबी का हैडकुआटर फिलीपींस के विच है। और अगर तूफान की गल करते हैं तो फिलीपींस के विच गोनी। नैक्सट है नेपाल की अगर आप गल करिए नेपाल रिलेटेड आप डिस्कस करना सी कि सीमेरू वोल्केनो है ये इंडोनेशिया का है, इरप्ट आउट होया, कैपिटल जकार्ता रुपया डिस्कस कर लिया आपने। नेपाल की अगर आप गल करते हैं तो नेपाल के माउंटेनियर्स की टीम है जी जिसनों हैड किया निर्मल पुरजा द्वारा। इन्होंने एक हिस्टरी बनाई है, एक रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने K2 जो कि वर्ल्ड की सैकेंड हाईएस्ट माउंटेन है 8611 मीटर्स जिसकी हाइट है, इसके उत्ते चढ़ाई की है, ठीक है। पर यह कोई पहली बार तो नहीं की गई। इंपोर्टेंट है इसमें फर्स्ट टाइम विंटर के विच किया गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम विंटर के विच इसकी चढ़ाई वर्ल्ड की सैकेंड हाईएस्ट माउंटेन 8611 मीटर कित्थे रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो नेपाल की टीम ने रिकॉर्ड स्थापित किया है, ठीक है जी। डायरैक्टली याद रखांगे, इंपोर्टेंट बनेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फॉर्म्ड तेलंगानी बोर्ड है जिहड़ा यह किहड़ी स्टेट ने बनाया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द
ਪੀਪਲ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਛੱਤੀਸਗढ़ द्वारा तेलंगानी बोर्ड बनाया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं डिस्कस करांगे इस तो इलावा होर इंपोर्टेंट न्यूज़ कुछ स्टेट्स के रिलेटेड। तो उड़ीसा द्वारा सैकेंड एडिशन शुरू किया गया ईको रिट्रीट प्रोग्राम का आप डिस्कस किया होया। ईको रिट्रीट प्रोग्राम की है बेसिकली जिसके अंदर टूरिज्म को इंप्रूव करने के लिए अनाउंस किया गया सी। ठीक है कि टूरिज्म को इंप्रूव करने के लिए कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशनस खोलिया जाएगा लोगों के लिए और ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा टूरिज्म सैक्टर तो पैसा इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो जिसके लिए कुछ जी प्लेसिस सी इंपोर्टेंट रही सी आप पहले भी डिस्कस की हुई ने, एक बार दोबारा डिस्कस करांगे। स्टैटिक के रूप के डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोणार्क कित्थे है, कोणार्क टैंपल कित्थे है, कोणार्क सन टैंपल तो उड़ीसा के है। हीराकुंड रिवर है, हीराकुंड डैम है। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा। हीराकुंड डैम है बेसिकली महानदी रिवर के उत्ते, इंपोर्टेंट रहेगा। भीतरकनिका नैशनल पार्क है उड़ीसा के। दरुंगाबादी इस तो इलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। केरला की गल करते हैं। केरला के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने की किया, कमीशन किया फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 452 किलोवाट आवर। बेसिकली अगर आप गल करते हैं कि वर्ल्ड का नहीं कहेंगे, इंडिया का पहली ऐसी स्टेट दे विच एयरपोर्ट केड़ा है जो कि फुली काम कर रहा है सिर्फ सोलर एनर्जी के उत्ते। ठीक है, तो वह केड़ा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला का। ठीक है, अगर आप गल करते हैं इसी यूटी कि यूटीज़ के सब तो ऐसा पहला एयरपोर्ट केड़ा है जो फुली काम कर रहा है सोलर एनर्जी से, तो पुडुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है, पुडुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है, हुण इन्होंने एक होर नवी चीज़ शुरू कर ली कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाते। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स भी कित्थे लगाए गए? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इस तो पहले भी आप फ्लोटिंग सोलर प्लांट अगर आप गल करते हैं डिस्कस किए एमपी दे ओमकारेश्वर दे विच, कित्थे? ओमकारेश्वर दे विच अनाउंस किए गए सी, याद रखांगे। बिहार द्वारा रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई ट्रांसजेंडर पीपल की पुलिस दे विच कि पुलिस दे विच ट्रांसजेंडर पीपल नूं रिक्रूट किया जाएगा। सोमनाथ टैंपल कित्थे लोकेटेड है? ठीक है, स्टैटिक दे विच यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। न्यूज़ दे विच है सोमनाथ टैंपल है गुजरात के सोमनाथ टैंपल दे विच। न्यूज़ की है डिस्कस करते हैं, इंपोर्टेंट रहेगी। इस तो इलावा गुजरात रिलेटेड ही एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है वह भी डिस्कस करांगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नूं चेयरमैन अपॉइंट किया गया ट्रस्ट का। किस ट्रस्ट का? जिहड़ी कि सोमनाथ टैंपल नूं मैनेज करती है। सोमनाथ टैंपल जो कि प्रभास पतन टाउन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के विच है। इस दे ट्रस्ट के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तेलंगाना और गुजरात गवर्नमेंट ने टाइड अप किया है टू सपोर्ट वूमेन एंटरप्रेन्योर्स। तेलंगाना और गुजरात ने एग्रीमेंट किया किसके लिए? वूमेन एंटरप्रेन्योर्स नूं सपोर्ट करने के लिए। ठीक है जी। इसी तरीके नाल आपां डिस्कस किया सी एमपी और केरला ने एग्रीमेंट किया है टूरिज्म नूं करने के लिए। ठीक है, टूरिज्म के लिए एमपी केरला डायरैक्टली याद रखांगे और तेलंगाना गुजरात वूमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली आज के लिए बस इन्ना ही। एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन सीगा, इस करके न्यूज़ थोड़ी घट डिस्कस कर रहे हैं अज आप। तो कल तो अपना सैशन दोबारा इसी तरीके ना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। गुड बाय।